محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. برادران اسلام، واجرین اجماع، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا. جمعے جیسی نماز پڑھنے کی جو فضیلت کا دن ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کی وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حضرات، خطبہ مضمونہ کے بعد جو ہم نے آیت کریمہ پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا تو انہیں اللہ رب العزت نے جنت کے بشارت سنائے. اور آج ایک ہم مسلمان ہیں، ہم کون سا کام کرتے ہیں اور وہ کام اگر ہم کریں گے تو جنت میں جائیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا علیہ و صحابی، کہ جس پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اگر انہی راستوں پہ تم چلو گے تو تم کامیاب ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کا حق ادا کر چکا ہوں. جو کوئی انسان ہے اسلام کے اوپر جس نے احسان کیا، جس نے اسلام کا خدمت کیا، اسلام کے لیے خدمات کیے، کچھ بھی کیے، میں ان کا حق ادا کر چکا ہوں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہے، وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کا حق کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے ادا کرے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں کہ کل فلاں جنگ میں جانا ہے، صحابہ تم لاؤ اللہ کے راستے میں مال دو، فدیہ دو، روپیہ دو، پیسہ دو، غلہ دو. تمام صحابہ کرام اٹھ کر اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ جاتے ہیں، اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، ایک حصہ گھر پہ رکھ دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، ایک حصہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صدیق اکبر گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو؟
सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं मेरे घर में जितना सामान था सबको झाड़ू मार के अल्लाह और उसके रसूल के पास लेके चला आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का यह अंदाज सुना। हजरत उमर फारूक तो ज़ारो कतार रो रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का यह अंदाज देख के। आज मुसलमानों, हम 2 रुपया अगर मस्जिद में देते हैं तो एहसान जता रहे हैं, मस्जिद में ऐलान करवा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे हैं, रुकू में अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जा रहे हैं। इतना तेज आंधी चल रहा है, आंधी चल रही है। फिर जब सजदे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं तो वो खजूर के पत्तों की जो छत थी वो उड़ जाती है और बारिश हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर बारिश के छींटों में खराब हो गया, मिट्टी लग गया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म किए, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानिब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक को घुमाते हैं, सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये चांद जैसा चमकने वाले चेहरे पे आज मिट्टी लगी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे सहाबा, एक दिन वो आएगा, एक जमाना वो आएगा कि तुम देखोगे कि मेरी मस्जिद आलीशान मस्जिद बन जाएगी। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मस्जिद के लिए कुछ आप सहाबा इकराम के दरमियान ऐलान करिए कि ये मस्जिद तो कम से कम बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मेरे सहाबा, कौन है जो मस्जिद नबी के लिंटर का खर्चा करे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, किसी से 1 रुपया 1 दिरहम लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल, जितना मस्जिद का लिंटर का खर्चा बनाने का खर्चा है, अल्लाह के रसूल मैं दे रहा हूं। तो एक वो मुसलमान थे कि जिनके बारे में आयत करीमा उतरी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आज एक हम मुसलमान हैं कि अपने घर में फजर के वक्त सोए रहते हैं, अजान हो रही है, कौन जाए नमाज पढ़ने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए तो घर में जो 60-70 साल का बुढ़ा है वो नमाज पढ़े। नौजवान सोचते हैं हमारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन के बाद जंग में जाना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम की मजलिस लगी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट दे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस्मान को छोड़कर कौन है जो अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट दे? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी मर्तबा भी उठते हैं, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, 100 ऊंट मैं दे रहा हूं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस्मान तुम बैठ जाओ। ए उस्मान, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कौन है 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे? तमाम सहाबा इकराम की मजलिस है, कोई नहीं उठा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरी मर्तबा उठकर खड़े होते, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, 100 ऊंट मैं दे रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, उस्मान, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। ए उस्मान, तुम क्यों बार बार खड़े होते हो? मैं तुमको छोड़कर कह रहा हूं। 700 ऊंट उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रास्ते में दिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस्मान, तुमने आज अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट देकर इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि आज जिब्रील मेरे पास आए, कहते हैं कि अल्लाह के नबी, उस्मान गनी से कह दो कि आज के बाद वो एक भी नेकी का काम ना करे, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत देकर रहेगा। एक मुसलमान वो है। आज हम 10 रुपया मस्जिद में देते हैं तो ऐलान करवा रहे हैं। एक मुसलमान वो थे कि जो देते थे तो यही कहते थे, अल्लाह के रसूल, मेरी आखिरत बन जाए। आज हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया बन जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुश करने के लिए कहा कि उमर, तुम्हारी इतनी नेकियां हैं कि 7 आसमान के सितारे गिन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नेकियां नहीं गिनी जा सकती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, मेरी बीवी, रोने की वजह क्या है, रोने की बात क्या है? कहते हैं, अल्लाह के रसूल,
आपने उम्र फारूक के लिए कहा कि उम्र की इतनी नेकियां हैं कि 7 आसमान के सितारे गिन सकते हो, लेकिन उम्र फारूक की नेकियां नहीं गिनी जा सकती। मेरे अब्बू आपके साथ उठते, आपके साथ बैठते, आपके साथ खाते, आपके साथ पीते, आपके साथ नमाज पढ़ते, आपके साथ हिजरत किए। अल्लाह के रसूल, क्या बात है कि आप हमारे अब्बू के नेकियों का तस्करा नहीं किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे प्यारी बीवी, तुम उम्र फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकियां जानना चाहते हो कितना है? कहते हैं हाँ। कहते हैं कि उम्र फारूक की सारी जिंदगी की नेकी तराजू के एक साइड कर दिया जाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक दिन की नेकी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे हिरा में थे, एक दिन की नेकी पूरी जिंदगी की नेकियों का मुकालबा उम्र फारूक का नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नेकियों का मुकालबा नहीं कर सकता। वही हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूं। अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा दुआ बताओ, ऐसी कलमात बताओ कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाह की माफी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगूं। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, अल्लामनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआहन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दुआ सिखला रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक ही अपने आप को जालिम नहीं कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह, ज़लमतु नफ्सी, हमने जुल्म किया। कहाँ जुल्म किया? अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा था, तो उन्होंने लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल किया था। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना। ए अल्लाह, हमने भी अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया। तो यही चीज हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कह रहे हैं। और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मछली के पेट में दाखिल किया था, तो उन्होंने भी लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया हूं। तो वही चीज हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कह रहे हैं कि अल्लाह, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया। कितना नेकियों वाला शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन वो भी अपने आप को लफ्ज़ जालिम इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर का नमाज पढ़ाने के बाद एक बियाबान जंगल की तरफ चले जाते हैं। पीछे से तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि उमर रोज उसी जगह पे जा रहा है। मैं पीछा करते करते उमर फारूक का गया और देखा कि हजरत उमर फारूक एक जंगल के अंदर गए और जंगल के अंदर एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए। फिर मेरे दिल में वसवसा हुआ कि उमर फारूक का किसी गैर औरत के साथ संबंध तो नहीं है। कहते हैं कि मैं अपने दिल में कुछ भी सोच रहा था, लेकिन हजरत उमर फारूक जब गए उस झोपड़ी में और उस झोपड़ी से कुछ देर के बाद हजरत उमर फारूक जब वापस निकले, तो मैं उसी घर में, उसी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और पूछा, देखा, घर जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो बिस्तर पे लेटी हुई है और पेशाब पाखाना अपनी जिस्म की गलाजत वो बिस्तर पे कर रहे हैं। वो तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए, कहते हैं, अरे मेरी माँ, ये जो इंसान आ रहा है ये यहां आकर क्या करता है? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरे बेटे, तू मुझे माँ कह रहा है तो तू मेरा बेटा है। वो जो इंसान आ रहा है वो मेरे जिस्म के जो गलाजत है, पेशाब और पाखाने को वो साफ करता है और मुझे अपने हाथों से रोटी बना बना कर खिलाता है। पहले खुद अपने मुंह में चबाता है और चबाने के बाद फिर मेरे मुंह में डालता है और मेरे बर्तन को भी साफ करता है और चूल्हा जलाकर खुद खाना बनाता है। तो फिर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए मेरी माँ, तुम्हें पता नहीं वो कौन है? कहते हैं कि ए मेरे बेटे, मुझे क्या मालूम वो कौन है? कहते हैं, मेरी माँ, वो हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है। बुढ़िया कहती है कि जब मैंने अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना तो जैसे मेरे पैर के नीचे से जमीन सरक जाए कि एक अमीरुल मोमिनीन होकर 22 लाख मुरब्बा मील के हुकूमत और मालिक होकर वो मेरे जिस्म के गलाजत को साफ कर रहा है।
फिर तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं भागे भागे आया, देखा दरबार खिलाफत में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल नमाज पढ़ रहे हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह, ये जो मेरा काम है इसको तू रयाकारी में मत लिख देना। ए अल्लाह, मैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ए अल्लाह, मैं जन्नत का तलबगार हूँ। ए अल्लाह, तेरे रहमत का तलबगार। पीछे से तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन बस कीजिए, अगर किसी बेवा मुतल्लका का और किसी बुढ़िया का, किसी माजूर का, जिस्म का गलाजत को साफ करने वाला, उसको खाना बनाकर खिलाने वाला, अगर ये जन्नत में नहीं जाएगा तो अमीरुल मोमिनीन फिर मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन इंसान है जो जन्नत में चला जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाकया है। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में गश्त कर रहे हैं, देखते हैं कि एक इंसान अपने झोपड़ी के बाहर रो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास चले गए, कहते हैं मेरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? कहता है कि तुम मेरी मुसीबत नहीं समझ सकते हो, तुम मेरी मुसीबत नहीं जान सकते हो, तुम मेरे पास मत बैठो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे भाई जब तक तू बता नहीं देगा मैं यहां से उठकर जाऊंगा। कहता है कि एक हट्ठा कट्ठा नौजवान है जो मेरे घर पे आता है और मेरे बीवी से जिना करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं जिना का नाम सुना तो मेरे जिस्म के अंदर लर्जा तारी हो गई, कपकपी तारी हो गई, और मैंने कहा है मेरे भाई वो कब आएगा? कहते हैं एक दिन छोड़ के वो परसों के दिन आएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये मेरे भाई ठीक है, मैं परसों तेरे घर आऊंगा, लेकिन तू अपने बीवी से कह देना कि वो जब तुम्हारे बीवी के करीब वो इंसान जाएगा तो उससे कह देना कि चिराग को बंद कर देना किसी बहाने, और खाना बनाकर तैयार रखना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे दिन टाइम से, वक्त से पहले पहुंच गए उसके घर। देखते वो इंसान आया, इसके शौहर को कान पकड़कर बाहर किया और उसके बीवी के करीब हुआ, और जैसे वो करीब हुआ उसकी बीवी चिराग बंद कर देती है, बुझा देती है, और वो जिना पे आमादा हो जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस इंसान का लंबे लंबे बाल पकड़कर खींचे। वो कहता अरे कौन है? वो सोचा कि इसके शौहर आ गया, कहता तू जा बाहर अभी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आवाज के मुताबिक तलवार निकाले और एक ही वार में तन से सर जुदा कर देते हैं, और कहते हैं मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। वो औरत उठती है, तुरंत चिराग को जलाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस इंसान का शकल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कहते हैं मेरी बहन जल्दी से खाना लगाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खाना खाते हैं, उसका आदमी, उसका शौहर कहता है कि ये मेरे भाई तुम उस इंसान को कत्ल कर दिए हो, अगर हजरत उमर फारूक के सिपह सालार सिपाही देखेंगे तो मुझे उठाकर जेल खाने में डाल देंगे, इसलिए कि मुझे कातिल समझा जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उस इंसान को मालूम नहीं कि ये अमीरुल मोमिनीन है। कहते हैं मेरे भाई तुम घबरा क्यों रहे हो? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार खिलाफत से सिपाही आएंगे, इस लाश को ले जाएंगे, दफन कफन वही करेंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। वो इंसान जब सुनता है अमीरुल मोमिनीन है तो वो इंसान जारो कितार रोने लगता है। कहता है ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का वास्ता आपको बता रहा हूं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताए? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अगर तुझे बता देता तो तेरे दिल में दहशत हो जाती, ना तू चिराग को बंद करता और ना तू खाने को बनाता। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो इंसान कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मेरा भी कुछ सवालात है आपसे, तो हजरत उमर फारूक कहते हैं क्या है सवाल, बोलो। तो कहता है अमीरुल मोमिनीन जब किसी का गर्दन काटा जाता है तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्यों कहा? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि ये जानी, ये बदकार जो था, मैं इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा कि मेरे हुकूमत में, मेरे दौरे खिलाफत में ये अगर कोई जना कर रहा है तो या तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा होगा या अमीरुल मोमिनीन का कोई रिश्तेदार होगा, और अगर चिराग जलता,
अगर वो इंसान का मैं शक्ल देखता तो तुझे मैं ले दे के मामला रफा दफा भी कर सकता। इसीलिए मैंने चिराग को बंद किया और जब इसका गर्दन मैंने काटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब पढ़ा तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया, इसलिए कि इस जानी ये बदकार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। और इसलिए मैंने खाना बनाने के लिए तुमसे कहा था कि जिस दिन से तूने परसों मुझे यह दर्द भरी दास्तान सुनाई है, उसी दिन से अमीरुल मोमिनीन ने अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डाला। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा गश्त कर रहे हैं, गश्त करते करते देख रहे हैं कि एक झोपड़ी के बाहर चिराग जल रहा है, आग जल रहा है और उस पे बड़ा हांडी रखा हुआ है, पानी खोल रहा है, उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। कहते हैं हजरत उमर फारूक उस औरत के करीब गए, कहते हैं मेरी बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहते हैं ये खाना मांग रहे हैं। तो कहते हैं इन्हें खाना दो। कहती है वो औरत ये मेरे भाई मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। कहते हैं बैतुल माल में जाना चाहिए। कहते हैं मैं क्यों जाऊं बैतुल माल में? लोगों ने उमर फारूक को अमीर बनाया, उमर फारूक को अमीरुल मोमिनीन बनाया है, उसका खुद जिम्मेदारी होता है कि वो आवाम का खुद देखे, मैं क्यों जाऊं उसके पास? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं वो औरत को मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन। कहते हैं मेरी बहन फिर उमर को कैसे मालूम कि तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है? कहती है उमर को मालूम नहीं तो उमर को मालूम करना चाहिए ना। और अगर मेरे बच्चे इस भूख से तड़प तड़प के मर गए तो कल कयामत के दिन में उमर फारूक का गिरवान पकड़ूंगे अल्लाह के अदालत में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये अल्फाज सुनते हैं जारो कितार रोने लगते हैं, अपने दरबारे खिलाफत में आते हैं और राशन का गोनी खुद उठाते हैं। उनका गुलाम असलम कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम हूं आपका, आप दो मैं अपने पीठ पे ला दूं, अपने कंधे पे लाद के मैं उस औरत के घर लेके चलता हूं। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मेरे भाई मेरे दोस्त असलम उसने क्या कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन का गिरवान पकड़ूंगी अल्लाह की अदालत में। ये असलम क्या तुम मेरे जगह पे तुम अल्लाह की अदालत में मुजरिम बन सकते हो? उनका गुलाम कहता है कि अमीरुल मोमिनीन कोई वहां तो किसी के काम नहीं आएगा, वहां हर इंसान अपने अपने नफ्सी में होगा। अमीरुल मोमिनीन मैं आपका कैसे मैं बोझ उठा सकता हूं? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मेरे भाई तुम मत उठाओ, मैं खुद लेके जाऊंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधे पे वो राशन लाद कर उस औरत के घर पहुंचते हैं और खुद हजरत उमर फारूक खाना बनाते हैं और उस औरत के बच्चों को खिलाते हैं। खिलाने पिलाने के बाद हजरत उमर फारूक कहते हैं मेरी बहन तुम उमर फारूक को माफ कर दो। वो औरत कहती है मेरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो उमर फारूक का गिरवान पकड़ने के लिए कहा था, लोगों ने उमर फारूक को क्या देखकर अमीरुल मोमिनीन बना दिए थे, असल अमीरुल मोमिनीन तो तुम्हें होना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए कहते हैं मेरी बहन वो अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, मुझे क्या मालूम तेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं। वो औरत जब सुनती है कि अमीरुल मोमिनीन यही है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, वो औरत कहती है कि मैं इतना डर गई, इतना सह गई। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो औरत कहती है कि मेरे भाई तुम मुझे माफ कर दो। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मेरे बहन तुम मुझे माफ कर दो, तुमने जो कहा है कि मैं कयामत के दिन उमर फारूक का गिरवान पकड़ूंगी, मेरी बहन तुम मुझे माफ कर दो। वो औरत कहती है कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपको माफ कर रही हूं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मैंने आपके शान में गुस्ताखी की, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे माफ कर दो। तो एक मुसलमान वो थे, एक आज हम मुसलमान हैं। अगर 10 रुपया मस्जिद में देना होता है ऐलान कराते हैं, कितना ऐलान करो तब देते हैं, वो भी लग रहा है कि मैं जो है एहसान जता रहा हूं। एक वाकया आता है बुनियतुत तालबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में, जिनको लोग बड़े पीर के नाम से याद करते हैं। उनके किताब बुनियतुत तालबीन में एक वाकया मौजूद है कि उनके जमाने में एक इंसान बहुत बखील था, बहुत कंजूस था, अल्लाह के रास्ते में उसने कभी 1 दिरहम 1 रुपया नहीं दिया और न अपने बीवी बच्चों को देता था। चुनांचे जो इंसान मर गया, जब वो मर गया तो गुस्से के वजह से उसके बच्चे जो हैं
اس کا جو اصرفیہ روپیہ پیسہ تھا وہ بھی قبر میں اسی کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر بچے آئے گھر پہ، پھر رات میں سوچنے لگے، رات میں سوچ رہے ہیں کہ آخر میں وہاں دفن کر کے مجھے ملا کیا؟ اگر وہی روپیہ ہوتا، وہی پیسہ ہوتا، وہی اصرفی ہوتا تو میں کچھ کاروبار کرتا اور غریبوں میں تقسیم کرتا۔ چنانچہ اس کے دماغ میں یہ خیال آیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ انسان کہتا ہے امام صاحب ایسا ایسا بات ہے، کیا میں اس قبر کو کھود کر وہ اصرفیہ نکال لوں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ، اگر روپیہ پیسہ کے بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو جائز ہے، تو قبر کھود کے وہ سامان نکال سکتا ہے۔ چنانچہ وہ انسان گیا، قبر کو کھودا، کھودنے کے بعد جب پٹرے کو ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جتنا پیسہ تھا، جتنا چاندی تھا، جتنا اصرفی تھا، میرے باپ کے جسم پہ سب چپک گئے۔ اور اس کے بعد میں وہ انسان پیسے کو جب کھینچنے لگا، اس کے ہاتھ میں جھنجھناہٹ ہو گئی، وہ وہاں سے ترنت آیا، اور آنے کے بعد تمام جو اس وقت کے مولوی تھے، عالم تھے، ان کے پاس دعا کرایا کہ حضرت ایسا ایسا حال ہے، جیسے پھوڑا پھنسی ہو گیا میرے ہاتھ پہ، اور یہ ہاتھ پہ جیسے آگ جل رہا ہے۔ سب دعا کرنے لگے، لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ مہینہ 2 مہینہ گزر جاتا ہے، اصل میں اسے راز کھولنا پڑا شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے۔ کہتا ہے امام صاحب، جس دن سے اس قبر کو میں کھودا اور وہ اصرفی کا روپیہ میں نے پکڑا، امام صاحب اسی دن سے میرے ہاتھ پہ جیسے جہنم کی آگ رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میرے بھائی، اے میرے دوست، تیرا باپ بخیل تھا، تیرا باپ کنجوس تھا، تیرا باپ اللہ کے راستے میں 1 درہم نہیں دیتا تھا، آج وہی روپیہ، وہی پیسہ تیرے باپ کے پاس جہنم کے آگ بن کر لپٹ گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تیرے ہاتھ پہ پھوڑا پھنسی نہیں ہے، یہ تیرے ہاتھ پہ جہنم کی آگ کی لپٹیں آ گئی ہیں، اور اس کا وہی سبق ہے، تو نوافل کے ذریعے اللہ کو یاد کر، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا، اللہ رب العزت تیرے یہ ہاتھوں کو صحیح کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، اور اللہ ہم سے مطالعہ ہی کیا کر رہا ہے بتاؤ؟ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے 100 روپیہ کمایا تو 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں دو۔ ابھی کوئی انسان مجھ سے کہے کہ اب 100 روپیہ کا وہاں ہے اور تم مجھے 100 روپیہ تمہیں پرافٹ ملے گا اور اس میں سے 2.5 روپیہ مجھے دے دو، تو میں تو یہ کہوں گا، ارے بھائی 2.5 روپیہ کا مار گولی، آدھا لے لے۔ اللہ تو تم سے 2.5 روپیہ مانگ رہا ہے نا مسلمانوں، 2.5% مانگ رہا ہے نا، اور اس میں کنجوسی کر رہے ہو، اس میں وکیلی کر رہے ہو۔ یہ تمہارے مال، تمہارے روپیہ، تمہارے پیسے یہ کام آنے والے ہیں آخرت میں؟ آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ کنجوسی اور بخیلی سے اے اللہ تو ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ اپنے گھر میں مسجد ہو یا مدرسے ہو، اے اللہ دل کھول کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کے تعاون کیے، اے اللہ ویسا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اور اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ انہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور اے اللہ اس جو بیماری میں جو انسان مر چکا ہے اے اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وصلوا وأتموا ورحموا أكبر.